حافظ آباد تھانہ کالیکی منڈی پولیس کی کارروائی 3 ملزمان گرفتار، شراب اور مال مسروقہ برآمد۔ پولیس گرفتار ملزمان سے موٹر سائیکل اور دیگر مال مسروقہ برآمد کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان میں خلیل، سکندر اور لقمان شامل ہیں۔ شراب فروش لقمان سے 20 بوتلیں شراب برآمد کر کے مقدمہ درج کر کے گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔ اب رخ کرتے ہیں تحصیل علی پور کا، جہاں پر گورنمنٹ ہائی اسکول ماڑیاں میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ماسٹر جمیل کو ریٹائرڈ ہونے پر الوداعی تقریب منعقد ہوئی۔ اس حوالے سے مزید رپورٹ کرے ہیں علی پور سے محمد جنید۔ تحصیل علی پور گورنمنٹ ہائی اسکول ماڑیاں میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ماسٹر جمیل کو ریٹائرڈ ہونے پر الوداعی کے موقع پر اسکول کے تمام اساتذہ اور ہیڈ ماسٹر کی طرف سے پارٹی رکھی گئی۔ اسکول کے تمام اساتذہ کرام نے ماسٹر محمد جمیل کو پھولوں کے ہار پہنائے اور مہمان خصوصی ہیڈ ماسٹر سلیم بھٹا اور گورنمنٹ ہائی اسکول ماڑیاں کے ہیڈ ماسٹر نے نیک خواہشات کے ساتھ الوداع کیا۔ ماسٹر محمد جمیل کی گورنمنٹ ہائی اسکول ماڑیاں میں بہترین خدمات پہ خراج تحسین پیش کیا۔ الوداعی موقع پر طلباء بھی موجود تھے۔ خبر شامل کریں گے راولپنڈی سے، رپورٹ کر رہے ہیں عامر عباسی۔ انگور ایک خوش ذائقہ اور توانائی بخش پھل ہونے کے ساتھ ساتھ بھرپور غذائی اہمیت کا حامل ہے۔ انگور میں اہم غذائی عناصر کیلشیم، فاسفورس اور فولاد کے علاوہ وٹامن بی کے حصول کا عمدہ ذریعہ ہے۔ زرعی ماہرین کی طرف سے خطہ پوٹوہار کو انگور کی کاشت کے لیے موزوں قرار دینے اور اس خطے کے لیے موزوں اقسام کی دریافت کے بعد کاشتکاروں میں انگور کی کاشت کا رجحان بڑھ گیا ہے اور کاشتکاروں نے پیداوار حاصل کرنی بھی شروع کر دی ہے۔ اب خطہ پوٹوہار میں بڑے رقبے پر انگور کی کاشت ہو چکی ہے اور خطہ پوٹوہار کی ضروریات اب انگور کی پیداوار سے حاصل ہو رہی ہیں۔ زرعی ماہرین کا کہنا ہے کہ خطہ پوٹوہار کے کاشتکار انگور کی کاشت سے سالانہ 4 سے 5 لاکھ فی ایکڑ منافع کما سکتے ہیں۔ اتنا منافع روایتی فصلوں سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ خطہ پوٹوہار میں انگور کی ایسی اقسام قابل کاشت ہیں جو مونسون سے پہلے پک کر تیار ہو جاتی ہیں، جن میں شوگرا، سلطانی، NARC بلیک، فلیم سیڈ لیس اور کنگ روبی وغیرہ شامل ہیں۔ زرعی ماہرین کا کہنا ہے کہ پوٹوہار کے کاشتکار زیادہ سے زیادہ انگور کاشت کر کے منافع کمائیں۔ ہتھیجی کے نواحی موضع بہاولپور گھلواں تھانہ نوشہرہ جدید کی حدود میں دن دہاڑے قتل کی واردات۔ محمد عبید الرحمان گھلو کو محمد حذیفہ اور ایک نامعلوم شخص نے گولی مار کر قتل کر دیا۔ تھانہ نوشہرہ جدید کی حدود میں دن دہاڑے قتل کی واردات ملزم محمد حذیفہ اور ایک نامعلوم شخص نے موضع بہاولپور گھلواں کے رہائشی 45 سالہ محمد عبید الرحمان گھلو کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ ذرائع کے مطابق واقعہ ایک لڑکے سے دوستی کی وجہ سے پیش آیا۔ پولیس تھانہ نوشہرہ جدید چوکی ہتھیجی نے موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کر دی۔ DPO لودھراں عبدالرؤف بابر کی سربراہی میں لودھراں پولیس کی گزشتہ 48 گھنٹوں کی کارروائی۔ پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی۔ پولیس نے 12 ملزمان گرفتار کر کے 250 لیٹر شراب، ریوالور 32 بور اور جوئے پر لگی رقم 17,500 روپے برآمد کر لی۔ پولیس نے ملزم فیروز سے 210 لیٹر شراب، شہباز سے 20 لیٹر، شفیق سے 20 لیٹر شراب برآمد کر لی۔ پولیس نے ملزم جگے شاہ سے ریوالور 32 بور برآمد کیا۔ پولیس نے ملزمان کامران، خالد، قمر، عباس، عابد علی، رمضان، وارث اور گلزار کو تاش پر جوا کھیلتے گرفتار کر لیا۔ پولیس نے جوئے پر لگی رقم 17,500 تاش برآمد کر لیے۔ تمام ملزمان کے خلاف مقدمات درج۔ جرائم پیش عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ خبر شامل کریں گے حافظ آباد سے۔ عالمی چائلڈ لیبر ڈے کے حوالے سے بھٹا مزدور یونین کی جانب سے لیبر آفس حافظ آباد کے باہر احتجاج۔ بھٹا مزدوروں کے بچوں نے پلے کارڈز فلیکس اٹھا رکھے تھے۔ 3 سال قبل حکومت پنجاب نے بھٹا مزدوروں کے بچوں کے لیے جاری کردہ فنڈز میں محکمہ تعلیم نے خرد برد کی۔ فنڈ سے بھٹا مزدوروں کے بچوں کے لیے اسکول بیگ، کتابیں وغیرہ دینی تھیں، جو تاحال بھٹا مزدوروں بچوں کو نہ مل سکی، جو اپنے حق کے لیے احتجاج کر رہے تھے۔ مزدوروں کا مطالبہ تھا کہ ان کے بچوں کو فنڈز خرد برد کرنے والوں کا احتساب ہو۔ ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ میں پنجاب حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ حافظ آباد سے چائلڈ لیبر کا خاتمہ کیا جائے اور بٹھا مزدوروں کے بچوں کا جو فنڈ CO ایجوکیشن کے پاس پڑا ہوا ہے وہ جاری کیا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں گوجرانوالہ سے۔ چور شہریوں نے پکڑ لیا۔ تھانہ فیروزوالہ کے علاقے میں موٹر سائیکل چور شہریوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ شہریوں نے مبینہ چور کی درگبت آنے کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا۔ مبینہ چور موٹر سائیکلیں چوری کر کے ان کے اسپیئر پارٹس فروخت کرتا تھا۔ چور کے قبضے سے کھلی موٹر سائیکل اور اسپیئر پارٹس بھی برآمد کیے گئے۔ خبر شامل کرتے ہیں ضلع گھوٹکی میں حاجی دادن خان مہر کی سالگرہ کی تقریب منعقد کی گئی۔ پیپلز پارٹی ضلع گھوٹکی کے جنرل سیکرٹری سکندر علی لاکھو، ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری عبدالمجید لاکھو، پیپلز سیکرٹری آفس گھوٹکی میں ضلع گھوٹکی کے نائب صدر حاجی دادن خان مہر کی سالگرہ کی تقریب منعقد کی گئی۔ سالگرہ کی تقریب میں MS گھوٹی، ڈاکٹر اباب ملک، ذوالفقار علی، محمد ہاشم، لکھن، عبدالغنی لاکھو، راہب علی گھوٹو، رضا حسین سنگھڑ، جانی شنکر، ڈاکٹر محمد یاسین الائے، پیپلز پارٹی کارکن نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر دادن خان مہر
पीपल्स पार्टी के कारकुनान के साथ अपनी सालगिरह का केक काटा। इस मौका पर जिले जनरल सेक्रेटरी सिकंदर लाखोर, डिप्टी इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी अब्दुल मजीद लाखोर, डिप्टी इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी अब्दुल मजीद लाखोर, पीपल्स पार्टी के कारकुनान हाजी दादन खान मेहर की सालगिरह की मुबारकबाद पेश की और सिंध की सकाफत अजरा का तोहफा पेश किया। मुटियारी के मशहूर कश्ती पहलवान अमजद बुगटी ने हमारे आवाज न्यूज के ब्यूरो चीफ निसार अहमद शो को इंटरव्यू दिया कि 13 जून को जिला सांगड़ के शहर झोल में कश्ती का मुकाबला होगा और जिसमें पहलवान गुलाम हुसैन पठान ने सिंध के कश्ती पहलवानों को खुलकर चैलेंज किया कि कोई सिंधी कश्ती पहलवान जो मुझे कुश्ती से हरा सके। और आज जो सोशल मीडिया पे छाया हुआ है तो सिंध का पहलवान अमजद बुगटी ने गुलाम हुसैन पठान से कुश्ती जीतने का खुल्लम खुला चैलेंज किया है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे आवाज न्यूज के ब्यूरो चीफ निसार अहमद शो के इस प्रोग्राम में। जी निसार अहमद, क्या तफसीलात हैं जिला मुटियारी से? इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला मटियारी सिंध में। यहाँ जो मेरे साथ दोस्त बैठा हुआ है इनका नाम है अमजद बलोच बुगटी। ये कुश्ती पहलवान है। आइए मज़ीद इनसे जानते हैं इसने कुश्ती कहाँ से सीखी और इसको कुश्ती का कैसे शौक़ बना। और जैसे ये भाई बता रहा है कि कल 13 तारीख को हमारा ज़िला सांगड़ झोल शहर में प्रोग्राम है कुश्ती का, तो मज़ीद मालूमात इनसे लेते हैं कि इसका जो कुश्ती का जो प्रोग्राम है तो इसने किसको चैलेंज किया है। मज़ीद आके इन भाई से पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाईजान, आपका नाम क्या है? वालेकुम सलाम, मेरा नाम मोहम्मद अमजद बुगटी है। नबी बख्श बुगटी का बेटा हूँ। मेरा उस्ताद जो है उस्ताद माशूक अली बुगटी है। मटियारी में मैं रहता हूँ। अच्छा, आपको ये कुश्ती का कैसे शौक़ पैदा हुआ? ये आपका कुश्ती का जो आप प्रोग्राम करते हैं या कुश्ती मलाखड़ा जो होता है सिंध का, ये आपको कब से शौक़ बना? ये कितने अरसे से ये आपका ये चलता आ रहा है? जी, ये कुश्ती जो है 5,000 साल से चलता आ रहा है। हमारे जो ख़ानदान है सारे ये कुश्ती लड़ते आ रहे हैं। हमें ख़ानदानी शौक़ है हमें कुश्ती लड़ने का। हमारा जो ख़ानदान है सारा जो ये है ना कुश्ती लड़ता आ रहा है, तो हमें बचपन का ही कुश्ती का शौक़ है। अच्छा, ये जो आपने बताया कि आपका जो प्रोग्राम ज़िला सांगड़ में 13 तारीख को होने वाला है, कुश्ती प्रोग्राम जो मलाखड़ा होने वाला है, तो आप किसको चैलेंज कर रहे हैं? जी, 13 तारीख को झोल शहर में जो चैलेंज है हमारा गुलाम हुसैन पठान से चैलेंज है। वो कह रहा है कि हम बड़ा पहलवान हैं, सिंध में ऐसा कोई पहलवान नहीं है जो हमें हरा सके। वो दूसरे मुल्कों में भी जाता है, ईरान में गया है, अफगानिस्तान में गया है, अभी रशिया जाने वाला था। तो हमने उसको ओपन चैलेंज दिया है, अगर वो पख्तून का पहलवान है तो हम तीसरे जोर के एक पहलवान हैं, हमने उसको ओपन चैलेंज दिया है तो वो हमसे मुकाबला करे अगर वो पहलवान है तो। अच्छा, तो आप गुलाम हुसैन पठान को चैलेंज दे रहे हैं। जैसे कि गुलाम हुसैन पठान जो है तो पूरी सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और उसको सिंध असेंबली के आगा सिराज दुरानी ने भी अवार्ड मुहैया किया था और उन्होंने भी आगा सिराज दुरानी ने कहा था कि ये जो पख्तून है, पठान है, तो सिंध में ऐसा कोई जवान नहीं है जो इसको हरा सके। तो आप अपने कितने पलपोज़ों में कह सकते हैं कि मैं इसको अपना हरा सकूँगा? इंशाल्लाह हमें तो पूरा उम्मीद है, इंशाल्लाह हम बिल्कुल मुकाबला करेंगे, हम इंशाल्लाह जीतेंगे, हमको पूरा यकीन है। हमारे बड़े बड़े पहलवान हैं, पहले जोड़ के हैं, बड़े बड़े पहलवान हैं। ये कहता है सिंध में ऐसा कोई पहलवान नहीं है को वो हमें हरा सके। हमारे सिंधवासी हैं, हमारे कुछ पहलवान हैं, हमारे सिंधवासियों ने मुझे आगे किया है, मुझे उन लोगों ने चाहा है। मैं तमाम शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जिसने मुझे आगे किया है, उसने मुझे सपोर्ट किया है। और कुश्ती लड़ने का बिल्कुल मैं उसे कुश्ती लड़ूंगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है मैं जीतूंगा, मेरा जीत मेरे सिंध के नाम होगा। अच्छा, आप जो कुश्ती लड़ते हैं आपको सिंध गवर्नमेंट से क्या रिलीफ मिलता है? सिंध गवर्नमेंट का हमारे जो सिंधी कुश्ती है उसमें वो उस लोगों का कोई दिलचस्पी नहीं है, ना वो कुछ फंड देते हैं, ना उसने कोई रिलीफ दिया हुआ है। हमारे जो पहलवान हैं, सीनियर हैं या रिटायर हैं या जूनियर हैं, जो भी पहलवान हैं, हमारे को सिंध के मुताबिक कुछ नहीं मिलता है। हमको पेनाडोल की टेबलेट भी नहीं मिलता है। जी ठीक। जी नाज़रीन, आपने अमजद बुगटी की बातें सुनी। ये अमजद बुगटी मटियारी सिंध का रहने वाला है। इसका कहना कि मेरे अब्बा, दादा, परदादा ये सब सारे कुश्ती लड़ते थे और हमें वहाँ से उस्तादी मिली है। तो इसने कहा कि 13 तारीख को जो
ज़िला सांगड़ में ये कुश्ती का प्रोग्राम रखा गया है और जो गुलाम हुसैन पठान ने ओपन चैलेंज दिया है कि सिंध में ऐसा कोई माँ लाल पैदा नहीं हुआ जो अपने मुझे इस पठान को हरा सके। तो इस भाई ने चैलेंज किया हुआ है गुलाम हुसैन पठान को, अगर आपको इतना भरोसा है कि सिंधी कुश्ती नहीं लड़ सकते या कुश्ती नहीं जीत सकते तो ये तो पता चलेगा ग्राउंड में। तो कल इन्होंने पक्का प्रोग्राम रखा है अपना झोल में। इन्होंने मज़ीद कहा कि हम वहाँ अपना जलवा दिखाएंगे, वहाँ तो पता चलेगा। सोशल मीडिया पे तो वैसे भी बातें चलती है कि मेरे जैसा कोई पहलवान नहीं, कोई ऐसा कोई है नहीं जो मुझे हरा सके। तो ये तो पता चलेगा ग्राउंड के अंदर, तो कौन जीता है या कौन हारता है। कैमरामैन अब्दुल हई शौक के साथ निसार अमन शौक, आवाज़ टीवी न्यूज़, मटियारी। खबर शामिल करेंगे समुद्री। थाना सिटी पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया। समुद्री में नामालूम चोर जनाजा पढ़ने आए शहरी की मोटरसाइकिल चोरी करके फरार हुए थे। FIR के मुताबिक चोर 468 गांव पे कब्रिस्तान से मोटरसाइकिल चोरी करके रफू चक्कर हुए। चोर होंडा 125 CG मोटरसाइकिल नंबर ACA 447721 चोरी करके फरार। मुतासरा शहरी का नाम शोजब बताया जाता है जो मोहल्ला शौकताबाद का रिहायशी है। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, ताहाल मुल्जिमान अभी तक फरार है। खबर शामिल करते हैं जड़ावाला से। खानदानी दुश्मनी का शाखसाना मुखालफी ने अंधाधुंध फायरिंग करके मियां बीवी को सरे बाजार कत्ल कर दिया। वाकया सैयदवाला रोड झोंक मोड़ के करीब पेश आया। थाना सदर कोट कबीर का रिहायशी शाहिद अपनी बीवी इरम के हमरा जा रहा था। शाहिद ने 2 साल कबल पसंद की शादी की थी। मकतूला इरम के खानदान वालों को शदीद रंज था। मकतूला के वर्सा ने लाशें सड़क पर रखकर रोड ब्लॉक कर दिया। मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। कुंदकोट के करीब थाना B सेक्शन की हदूद दुबई होटल पर ट्रॉलर का मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर। कुंदकोट टक्कर के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने बरवक्त पहुंचकर ड्राइवर और ट्रॉलर को अपनी हिरासत में लेकर जख्मी अफराद को सिविल अस्पताल कुंडकोल मुंतकिल कर दिया। कोर्ट जख्मी अफराद की शनाख्त जफरुल्लाह सबजोई के नाम से हुई। जख्मी अफराद की हालत तशवीशनाक होने के बायस लाड़काना रेफर कर दिया गया। कुंदकोट वाज़ेह रहे कि वाक़या का मुकदमा ताहाल दर्ज न हो सका। खबर शामिल करेंगे जहलम से। अदम बर्दाश्त की इंतहा, घरेलू नाचाकी पर भाई ने भाई की जान ले ली। लाश को TH अस्पताल मुंतकिल कर दिया। थाना चुटाला की हदूद नूरपुर बागा में घरेलू नाचाकी पर भाई ने भाई की जान ले ली। बड़े भाई ने छोटे भाई को पेचकस मार के कत्ल कर दिया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस की भारी नफरी जायवका पर पहुंच गई। खबर शामिल करेंगे समुद्री से। थाना सिटी के इलाके में शिगाफ पड़ गया। छोटी नहर गरेवाल कॉलोनी में शिगाफ पड़ गया। शिगाफ बढ़ने के खदशात, अहल इलाका शिगाफ बंद करने में मसरूफ। अहल इलाका ने इंतजामिया से शिगाफ को बंद करने की अपील कर दी। शोरकोट कायम भरवाना मोहल्ला हुसैनाबाद का बिजली लाइन का दरीना मुतालबा पूरा कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक मोहल्ला हुसैनाबाद का बिजली लाइन का दरीना मुतालबा पूरा कर दिया, जबकि कायम भरवाना की अवाम ने MNA साहिबजादा मोहम्मद अमीर सुल्तान, हाजी खुशी मोहम्मद जट, साबिका बाबडा मुलाजिम और चौधरी मोहम्मद शहबाज जट, सदर इंसाफ यूथ विंग शोरकोट का खसूसी शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करेंगे हरुनाबाद और गिरदनवाह में गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा। हरुनाबाद की अहम शाहराहों पर ठंडे मशरूबात की थैले सज गए। आलू बुखारा, इमली, फालसाम और आड़ू, लीमू पानी और सत्तू वगैरह इस मौसम में ठंडक और राहत का अहम तरीन जरिया है। ठंडे मशरूबात पर देखते हैं हरुनाबाद से अरशद अली गौरी की ये रिपोर्ट। जैसे जैसे सूरज का पारा चढ़ता जा रहा है वैसे ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही ठंडे ठंडे मशरूबात की मांग में भी इजाफा हो गया है। कहीं लीमू पानी तो कहीं लस्सी पी जा रही है। गर्मी के मौसम में ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल राहत और ठंडक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता है। गर्मी की शिद्दत के साथ ही हरुनाबाद शहर की अहम शाहराहों और बाजारों में ठंडे और मीठे मशरूबात के स्टॉल सज गए हैं। फालसा, आड़ू और इमली, आलू बुखारे के साथ साथ पुदीना और खीरे का शरबत गर्मी का तोड़ समझा जाता है। हरुनाबाद में जा बजा इन मशरूबात के ठेले सज गए हैं, जहां बूढ़े, जवान और बच्चे इन मशरूबात से ठंडक और राहत हासिल करते नजर आते हैं। शहरियों का कहना है कि शदीद गर्मी में इन मशरूबात को पीने से ना सिर्फ गर्मी का एहसास कम होता है बल्कि जिस्मानी और जहनी ताजगी भी लौट आती है। दूसरी तरफ बाजारी ठेलों पर सफाई के नाकिस इंतजाम के बाइस बच्चे और बूढ़े अफराद अक्सर बाजारी मशरूबात पीकर बीमार भी हो जाते हैं। इसीलिए डॉक्टर हजरात घर में साफ सुथरे बने हुए मशरूबात का इस्तेमाल का मशवरा देते हैं, जो कि सस्ते और सेहत बख्श भी होते हैं। घर के बने मशरूबात केमिकल से भी पाक होते हैं। कैमरा टीम के साथ अरशद अली गौरी, हरुनाबाद।
दीपालपुर के नवाही परवीनाबाद में चोरों ने मेहनत कश के घर का सफाया कर दिया। नामालूम चोर लाखों की नकदी, तलाई जेवरात और कीमती घरेलू सामान चोरी करके फरार हो गए। दीपालपुर के नवाही इलाका परवीनाबाद में मेहनत कश मोहम्मद हसन रिश्तेदारों के पास गया हुआ था। घर में बीवी हलीमा बीबी बच्चों के हमरा सो रही थी कि नामालूम चोर दीवार फैलाकर घर में दाखिल हो गए और कमरे में मौजूद 1,50,000 नकदी, तलाई जेवरात और कीमती घरेलू सामान चोरी करके फरार हो गए। अहले खाना ने DPO फैसल शहजाद से फौरी नोटिस लेने का मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की गिरफ्तारी और माल मसरूका बरामद करने का मुतालबा कर दिया। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਚੋਰ ਆਏ ਨੇ, ਚੋਰ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੱਸਣਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕੇ ਚਾੜਿਆ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਦਾਣੇ ਵੇਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਪੈਸੇ। ਫਿਰ ਹਟ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤੋਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਕੱਪੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ 25-30 ਤੋਂ 40 ਕੁ ਸੂਟ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਜਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਰ। ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਏ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਗਏ। थल के करीब गढ़ी हसन में 9 महीने कबल घर में घुसकर कुल्हाड़ियों और छुरियों के वार करके कत्ल होने वाले मुबारक दोयो के कातिल गिरफ्तार न होने के खिलाफ वर्षा का एहतजाज। थल के करीब गढ़ी हसन के रिहायशी को 9 महीने कबल नौजवान मुबारक दोयो को बेदर्दी से कत्ल करके मुकदमे में मतलूब मुलजिमान की गिरफ्तारी न होने के खिलाफ मकतूल के वर्षा शौकत दोयो, शबीरान खातून और दीगर की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 9 महीने कबल मकतूल मुबारक दोयो को कत्ल कर दिया गया। 1 साल गुजर जाने के बावजूद पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी। उनका मजीद कहना था कि अली मोहम्मद शबीर अहमद वकील पर कत्ल का मुकदमा दर्ज होने के बावजूद गढ़ी हसन पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं कर रही। मुतासरीन ने SSP जैकब आबाद से मकतूल के कत्ल में मुलव्वस मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा करते हुए कहा कि मुलजिमान की गिरफ्तारी तक धरना जारी रहेगा। मोटरवे पुलिस सखर सेक्टर मुरखा 12 जून 2021। सखर मोटरवे पुलिस सखर सेक्टर की जानिब से चाइल्ड लेबर डे से जबरी मुशक्कत के हवाले से थेरेटी बाईपास पर वाक़ा इनकाद किया गया, जिसमें सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों, बच्चों और मोटरवे पुलिस के अफसरान ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक IG मोटरवे सैयद कलीम इमान, DIG मोटरवे सिंध अली शेर जखरानी की खसूसी हिदायत पर SSP मोटरवे सखर सेक्टर जावेद इकबाल चौधर की ज़ेर निगरानी बच्चों से जबरी मुशक्कत के हवाले से आलमी दिन के मौका पर ठेड़ी बाईपास वाक़ा इनकाद किया गया। इस मौका पर जबरी मुशक्कत के खिलाफ आलमी दिन के मौका पर बच्चों के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की, ताकि पूरी दुनिया में बच्चों पर जुल्म की ज़्यादती और जबरी मुशक्कत के हवाले से दुनिया को ये पैगाम देना है कि मोटरवे पुलिस रोड हादसात में कमी के हवाले और अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ बच्चों पर जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ अपना किरदार अदा कर रही है, ताकि आइंदा इस तरह के वाक़यात रुमा ना हो, ताकि उनके वालिदैन की परेशानी का सामना न करना पड़े। जबकि सिविल सोसाइटी ने मोटरवे पुलिस की चाइल्ड लेबर डे के हवाले से प्रोग्राम मुनक़्क़िद कराने पर मोटरवे पुलिस की तारीफ भी की। रोड सेफ्टी के हवाले से आम लोगों में शौर उजागर करने के लिए वॉक में बच्चों ने खुतबों के जरिए ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने और रोड हादसात की रोकथाम के लिए अवाम को आगाही फराहम की। वॉक के इख्तिताम पर शुरा और बच्चों में मोटरवे पुलिस की जानिब से पानी और मशरूबात भी तकसीम किए गए। खबर शामिल करते हैं समुद्री से। गरीब शहरी इंसाफ के लिए दर बदर रुलने लगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इंसाफ की अपील। समुद्री के नवाही गांव 477 गाव पे के रिहायशी आरिफ अली के ज़ाती मकान पर बास अफराद ने मुबैना कब्जा कर लिया। मुतासर अफराद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने 2008 में ये जगह नसीम अख्तर से खरीदी। अरसा 13 साल से मैं रिहाइश पजीर था। मकान का कब्जा सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक भी मेरे नाम है और बिजली का मीटर भी 2017 में मेरे नाम पर लगा हुआ है। गांव के चंद बासर अफराद ने मुबैना तौर पर कुछ जाली कागज बनवाकर मेरे मकान पर कब्जा कर लिया। मकान में मौजूद मेरी बीवी बच्चों को मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। हमने हर प्लेटफॉर्म पर आवाज उठाई मगर मेरी बात की सुनवाई न हुई, ना हो पाई। मुलजिमान पैसे वाले और बासर अफराद होने की वजह से मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। मुतासरा शख्स ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया कि इतनी सख्त गर्मी में हम बेघर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, दर बदर धक्के खा रहे हैं, मुझे मेरा मकान वापस लेकर दिया जाए। सर मेरा नाम आरिफ अली है, मैं 477 गांव का रहायशी हूँ। मेरे मकान पर गांव के बासर लोगों ने पुलिस के साथ साजबाज होकर कब्ज़ा कर लिया और मेरे बीवी बच्चों को मारकर घर से बाहर निकाल दिया है। और मेरे नाम का मीटर वहाँ लगा था, वो भी उन्होंने काट कर फेंक दिया है। लिहाजा मेरी दरख्वास्त है
वज़ीर आज़म से कि मुझे जल्द से जल्द मेरा मकान वापस ले कर दिया जाए, और मैं हर प्लेटफार्म पर भी गया, मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। लिहाजा मेरी वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, मेरे बीवी बच्चे गर्मी में रह रहे हैं, और मुझे जल्द से जल्द मेरा मकान वापस लेकर दिया जाए, और मेरे पास इसके अलावा और जगह भी नहीं है। ਫੇਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਮੀਟਰ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਸਿੱਟਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕੁਛ, ਤੇ ਨਾ अपील है साडी वज़ीर आज़म। बूरेवाला थाना सहोका की हदूद मौजा भटिया में डकैती की बड़ी वारदात। दर्जन भर डाकू घर में घुसकर अलमारियां बक्सों के ताले तोड़कर 18 तोले तलाई जेवरात 7 लाख नकदी लूटकर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। बूरेवाला थाना सहोका के इलाके मौजा भटिया के रिहायशी साबिक प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल सहोका हाजी मोहम्मद याकूब भट्टी मरहूम के घर रात तकरीबन 2 बजे दर्जन भर मुसल्लह डाकुओं ने घुसकर कमरों में दाखिल होकर अलमारियों और बक्सों के ताले तोड़कर 18 तोले तलाई जेवर 7 लाख रुपए नकदी और कपड़े वगैरह लूट रहे थे कि घर वाले के उठने पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जिससे खौफ व हरास फैल गया। डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। खबर शामिल करेंगे घोटकी से। घोटकी में 3 रोज कबल बेदर्दी से कत्ल किए जाने वाले शाहमीर भुट्टो के कातिल को पुलिस अभी तक गिरफ्तार न कर सकी। पीटीआई जिला घोटकी सदर मीर इफ्तिखार अहमद खान इस मौका पर ताज़ियत के लिए पहुंचे। पीटीआई के जिले सदर मीर इफ्तिखार अहमद खान ने मीडिया से गुफ्तगू के लिए घोटकी पुलिस अमन अमान करवाने में नाकाम हो चुकी है। 3 रोज गुजर गए हैं, अभी तक मकतूल के कातिलों का पता नहीं लगा सकी। जब वारिसों ने रोड ब्लॉक किया था उस वक्त पुलिस ने 24 घंटे का टाइम दिया था, जो गुजर चुका है। पुलिस घोटकी जिला में अमन अमान करवाने में नाकाम है, अभी तक मकतूल के कातिलों का पता नहीं लगा सकी। मजीद पीटीआई के रहनुमा ने कहा, अगर पुलिस मकतूल शाहमीर भुट्टो के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किएगी तो पीटीआई कारकुन बुरसा के हमरा रोड पर धरना देंगे। जब तक मकतूल शाहमीर भुट्टो के कातिलों की गिरफ्तारी नहीं होगी धरना जारी रहेगा। सजन का पहिरें त मां मज़म्मत कंदम जो नौजवान बड़ी पहिरें शाहमीर भुट्टो तमाम बेदर्दी से कत्ल किया वियो, उन जो गलो कटियो वियो आहे। उन्हीं का पोइ उहो नौजवान पाण उतों जंहिं जाइ वारदात खां आयो आहे कंहिं पेट्रोल पंप ते, उते मदद जे लाइ माण्हुनि खे चयो अथसि त मूंखे हॉस्पिटल खणी वञो। नौशहरा विरका में थैलासीमिया के मरीज बच्चों के लिए निजी स्कूल के ज़ेर एहतमाम ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में खून का अतिया करने वालों ने शिरकत की और खून का अतिया किया। निजी स्कूल के ज़ेर एहतमाम थैलासीमिया के मरीज बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबे हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की और खून का अतिया दिया। कैंप के ऑर्गेनाइजर मियां मंजूर अहमद का कहना था कि थैलासीमिया के मरीज को जिंदा रहने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, अद्वियात के साथ साथ खून भी लगवाना पड़ता है। इसको मद्देनजर रखते हुए मैंने इस ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया और खून का अतिया इकट्ठा किया जो थैलासीमिया के मरीजों को लगाया जाएगा। उनका मजीद ये भी कहना था कि इन मरीजों के लिए सबको चाहिए कि खून अतिया करें ताकि थैलासीमिया के मरीज को जिंदगी गुजारने में आसानी हो सके। वजारत खारजा ने कहा कि जिन अफराद ने विजिट वीज़े जारी करवाए और परवाज़ों की पाबंदी की वजह से वो उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सके, वो अपने वीज़ों की मुद्दत में मुफ्त तौसीह करवा सकते हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वजारत ने 2021 को जिन 20 है कि ये सहूलत 2 फरवरी ममालिक की फहरिस्त जारी की गई थी और वहाँ से आने वाले परवाज़ों पर पाबंदी लगा दी गई। ममालिक के शहरियों के लिए है। वजारत ने कहा कि गैर इस्तेमाल शुदा वीज़ों की मुफ्त तौसीह सऊदी अरब की तरफ से कोरोना वायरस के बायस मुतासर होने वाले अफराद के लिए सहूलत की फराहमी का हिस्सा है। मज़कूरा ममालिक ने इस शहरी से अपने वीज़ों के मुफ्त तौसीह के लिए वजारत की तरफ से दिए गए लिंक के जरिए ऑनलाइन करा सकते हैं। विजिट वीज़ों की ऑनलाइन तौसीह के लिए यहाँ क्लिक करें। खबर शामिल करेंगे बूरेवाला से। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो शहरियों ने आंखों को गर्मी की शिद्दत से बचाने के लिए सन ग्लासेस की दुकानों और स्टॉल्स का रुख कर लिया। इस हवाले से देखते हैं बूरेवाला से मोहम्मद सईद चौधरी की ये रिपोर्ट। मौसम करवट बदलता है तो इसके तकाजे भी बदल जाते हैं। धूप सीधी आंखों को पड़े तो रंगीन चश्मा इसकी शिद्दत से बचा सकता है। गर्मियों में सड़कों के किनारे चश्मा बेचने वाले अक्सर नजर आते हैं, जबकि दुकानों में ब्रांडेड ग्लासेस की मांग भी बढ़ जाती है। बड़े हो या बच्चे सभी सन ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं। दुकानदार भी गर्मी के आते ही नए और ब्रांड वाले चश्मे दुकानों में सजा लेते हैं। उनका कहना है कि म्यारी चश्मे सूरज की शुआओं से महफूज रखते हैं, जबकि गैर म्यारी चश्मे बुरे असरात मुरतब करते हैं और आंखें कुदरत का अनमोल तोहफा है। इनकी हिफाजत के लिए गर्मियों में सन ग्लासेस धूप से महफूज रखते हैं और फैशनेबल ग्लासेस फैशन का हिस्सा भी हैं।
प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मजहर कलीम की जहानिया में गिराह फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी, भारी जुर्माने मौका पर वसूल। हुकूमत पंजाब की गिराह फरोशी मुहिम और डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़ीर अब्बास शिराजी साहिब की खसूसी हिदायत के पेश नज़र प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जहानिया मजहर कलीम ने जहानिया में किराना और सब्जी की दुकानें चेकिंग दौरान चेकिंग रेट लिस्ट आवेजा न करने और गिराह फरोशी करने वाले दुकानदारों को जुर्माने आयद किए। इस मौका पर उनका कहना था कि गिराह फरोशी की रोकथाम के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी ताकि अवाम को हुकूमत पंजाब के रेट पर हर चीज मुयस्सर हो सके। अलीपुर थाना सेतपुर की हदूद में रात को डकैती के वारदात, डकैतों ने 3 शहरियों को गोली मार दी। तीनों शहरी शदीद जख्मी हो गए। पुलिस मौका पर पहुंच गई। डकैतों के साथ मुकाबला, एक डकैत यूसुफ भदवानी मौका पर गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 5 डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए रूरल हेल्थ सेंटर सेतपुर मुंतकिल कर दिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ आवाज न्यूज मोहम्मद जुनेद जी से, क्या मामला है। जी बिल्कुल, अलीपुर थाना सीतपुर की हदूद में रात 1 बजे की डकैती की वारदात हुई। डकैतों ने 3 शहरों को गोली मार दी। तीनों शहरी शदीद जख्मी हो गए। पुलिस थाना सीतपुर मौके पर पहुंच गई। डकैतों के साथ मुकाबला हुआ, जिसमें एक डकैत यूसुफ बुधवानी को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 5 डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए RHC सीतपुर मुंतकिल कर दिया गया। तीनों शहरियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। जी खबर शामिल करते हैं तंगवानी से। कौमी अवामी तहरीक का एहतजाज, सिंध में पानी की किल्लत, कौमी कारकुनान पर मुकदमा, बहरिया टाउन इंतजामिया के खिलाफ कौमी अवामी तहरीक का एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरे की क़यादत कौमी अवामी तहरीक के ताल्लुकी रहनुमाओं रबडनो मलिक और सच्चल मलिक और दीगर ने की। मुजाहरीन ने माशाल्लाह होटल से बस स्टैंड तक एहतजाजी मुजाहरा करके सिंध में पानी के बहरान और बहरिया टाउन इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। वफाक का सिंध के साथ नारवा सलूक है, सिंध के हिस्से का पानी बंद किया गया, सिंध के साथ जातियां बंद करके कौम परस्त कारकुनान पर दायर मुकदमात खत्म किए जाएं। खबर शामिल करेंगे गुजरांवाला से। गुजरांवाला थाना कैंट के इलाका DC कॉलोनी में शोहर का बीवी पर बहिमाना तशद्दुद की CCTV फुटेज आवाज न्यूज ने हासिल कर ली। गुजरांवाला थाना कैंट के इलाके में खावंद का बीवी पर तशद्दुद, CCTV फुटेज मीडिया को मौसूल। फुटेज में खावंद उस्मान को अपनी बीवी पर थप्पड़ों और जूतों से तशद्दुद करते वाजिया देखा जा सकता है। मुलजिम उस्मान जब बीवी पर तशद्दुद करता है तो बच्चे भी वहाँ मौजूद थे। मुतासरा खातून माहिम के वालिद की मुद्दत में कैंट पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। माहिम की वालिद का कहना है कि 8 साल कबल उस्मान से मेरी बेटी की शादी हुई थी। तब से उस्मान आए रोज मेरी बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाता है और जान से मार देने की धमकियां देता है, जिस पर गुजरांवाला सिटी पुलिस ऑफिसर सरफराज अहमद फल्की ने इलाका थाना कैंट में खाबंद का बीवी पर तशद्दुद के वक़ुआ का नोटिस वाक़े की बाबत थाना कैंट में मुकदमा नंबर 425-21 दर्ज करके SP सिविल लाइन असद रहमान की निगरानी में थाना कैंट पुलिस की फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम उस्मान को गिरफ्तार कर लिया। CPO का कहना है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी।